یہ ننھی زمل ہے, اس کی عمر 10 مہینے ہے. اس بیچاری کو نہیں پتا کہ اس کا باپ اسے چھین لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ ایک ریڑی بان ہے, وہ ریڑی لگاتا ہے مونگ پھلی کی. اس کے باپ کا جرم یہ تھا کہ ایک بدبخت 1 بار 2 بار 3 بار آتا ہے, اس کی ریڑی میں ہاتھ مارتا ہے. اس ننھی کلی کے والد نے اسے کہا کہ بھائی اس کا پیسہ خرچہ ہوا ہے, کیا کرتا ہے, آتا ہے مال اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے, آتا ہے مال اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے, کیا مذاق کر رہے ہیں. اور پھر اس غصے کا انجام یہ نکلا تو بدبخت آتا ہے, ڈھس 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 باپ کو بھی فائر مارتا ہے, چچا کو بھی فائر مارتا ہے. اسماعیل خان اللہ غریق رحمت کرے اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے. اس کا بھائی ابراہیم خان اس وقت اپنی صحت کے لیے جوجھ رہا ہے, اس کی ٹانگ میں فائر لگا ہے, ابھی تک اس کو آپریشن نہیں ہو سکا. اور ان دونوں بھائیوں کا بوڑھا باپ جو ہے, جس نے اپنے بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کا ایک کا جنازہ اٹھایا اور دوسرے کی صحت کے لیے بیچارہ بھاگا پھرا, اور مجھے اس کی بھی پیچھے ویل چیئر نظر آ رہی ہے. یہ نہیں کیا جی لالا, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. حیدر خان صاحب اللہ آپ کو صبر دے, بڑا مشکل ہے بڑھاپے میں جوان جنازہ اٹھانا. اللہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے. کیا دشمنداری ہے, نفرت ہے, اختلاف ہے, کیوں یہ سب کیا ہو گیا لالا؟ کوئی دشمنداری نہیں تھی بھائی صاحب ہماری. آپ پنجابی آسانی سے بول سکتا ہے, اردو جو آسانی سے بول سکتا ہے بولو. کوئی دشمنی نہیں تھی, نہ پہلے سے پہچان بھی نہیں تھا اس کے ساتھ, کوئی پہچان نہیں, کوئی پہچان نہیں تھا. جس دکان پر وہ کام کرنے کو آتا تھا نا ورکشاپ میں, ورکشاپ میں کام کر کے بس چلے جاتا تھا, پہلا ہم اس کو جانتے ہی نہیں. آپ مونگ پھلی کا کاروبار کرتے ہو؟ مونگ پھلی بس بیٹے ریڈیو پر بیچتے ہیں. تلکڑ کا ٹال بھی ادھر تھا, ہمارا ٹال بھی باہر روڈ پر ریڈی لگاتا تھا ایک بیٹا. حیدر خان سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ایک بندہ آئے 2-4 مونگ پھلیاں اٹھائے اور اس پر بندہ مار دی. ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ ایسا ہوا نا ایک دفعہ آیا. کون؟ یہ آدمی جڑا تھا ادھر کا ملزم جو ہے, ملزم نے. اچھا, انہیں مونگ پھلی چکی, پھر چلا گیا. بیٹے نے کچھ نہیں کہا اور دکان پر چلا گیا. پھر دوبارہ آ کے پھر جا گیا. تیسری دفعہ آیا, کہتا مونگ پھلی چوک کے سڑک پہ پھینک دیا. تو اس منع کرنے پہ غصہ کر گیا. ہاں غصہ کرنا, میں تم سے دیکھوں گا تم کیا کر لو گے, اس نے بتایا. اور پھر چلا گیا, بیٹے نے کہا چلا گیا. انہوں نے کہ پتہ دوبارہ انہوں نے موٹر سائیکل دے آ کے گولی چلانی. کتنی دیر بعد آیا؟ بس 15-20 منٹ بعد آئے. یعنی ان کو اسلحہ موجود سی؟ ہاں اسلحہ موجود سی. کوئی لینڈ لون نہیں گیا, اسلحہ قریب ہی کہیں اس کی ایکسس میں تھا. وہ دکان میں پڑا تھا, پتہ نہیں کیا تھا. 15-20 منٹ بعد آئے. لالا کتنا سال عمر ہو گیا؟ ہاں ہمارا, ہاں ہمارا 60 سال عمر. 60 سال. اس 60 سال میں کئی کاروبار کام کیے ہوں گے. ہاں جی بالکل. کبھی اس طرح کا کوئی ہوتے دیکھا کہ یار انسان اتنا بھی گھٹیا ہو سکتا؟ نہیں دیکھا, بالکل نہیں دیکھا. اچانک کام ہوا ہے, ایک خواب سے, خواب کی نشانی. تو ظلم ہوا ہے, ظلم ایسا ظلم ہوا نا حد تو باہر. اسماعیل بڑا بیٹا تھا؟ نہیں, وہ تیسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پہ. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے, یہ زمل نامی بچی جو ہے ماشاءاللہ, یہ ایک ہی بیٹی ہے کہ اور بھی؟ بیٹی کا 1.5 سال ہوا شادی کیا تھا اس کا. 1.5 سال ہوا؟ ہاں ابھی اس سے شادی کیا تھا. اس سے چھوٹا ایک اور ہے, اس سے ایک بڑا, وہ بڑا اسپتال میں پڑا ہوا ہے, یہ تیسرے نمبر پر. اب لالا تمہیں بوڑھا ہونے کی اجازت نہیں ہے, تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ کیونکہ اب تمہیں اپنے بیٹے کے بچے کو بھی دیکھنا ہے. بالکل تمہارا ذمہ داری بڑھ گیا ہے. بالکل. اس بڑھاپے میں اب تمہیں نئی ذمہ داری ادا کرنا ہے. بالکل. اور اپنے بیٹے کا انصاف بھی تلاش کرنا ہے. انشاءاللہ انصاف لے گا. انصاف تم دے. کیا کہتی ہے حکومت, پولیس کوئی تعاون کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ ملزم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا؟ پکڑے, دونوں پکڑے. ہاں, اعلیٰ قتل جو ہے وہ برآمد ہو گیا ہے. ہاں جی بالکل, وہی آدمی ہے جو نہیں. وہ پستول مل گیا؟ پستول بھی ملے اسے. بس ہم کو انصاف مل جائے بھائی. اللہ آپ کو انصاف دے گا. قتل کے بدلے قتل مل جائے, بس یہ صورتیں ناجائز. کیا چاہتے ہو؟ CCD چاہتے ہو؟ ہاں. He is also asking for CCD. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ فٹ پرنٹ چھوڑا ہے. اب ہر شخص چاہتا ہے کہ یہی فٹ پرنٹ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اب یہ لگتا ہے کہ CCD ہی انصاف کر سکتی ہے. Now, the other name of justice is CCD. جوڈیشل سسٹم نہیں. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں جناب 6 سال ارک ریزی کروں, اپنے وسائل برباد کروں, میں جا کے عدالتوں کے دھکے کھاتا رہوں. کوئی بھی نہیں چاہیے گا. اور پھر اس کے بعد پتہ چلے بری ہوگا. بیکاز ہم نے
निज़ाम अदल को स्ट्रेंथन होने ही नहीं दिया, हमने उसको परवान ही नहीं चढ़ाया। हमें इमीडिएट रिलीफ की बात है। अब वो सही है गलत है वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि हम ये कितनी देर चला सकेंगे इस तरह का निज़ाम, बट इट इज़ हैपनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जी अफजल खान है, मैं जो बच्चा है उसका चाचा हूँ। हाँ, क्या उम्र थी इस्माइल की? बच्चे की उम्र थी तकरीबन 30 साल के राउंड अबाउट थी। अच्छा, आप चाचा हैं? जी हाँ। हैदर खान के छोटे भाई हैं? जी जी। अच्छा जी। दुश्मनी मुखालफत क्या था, सच बताओ। हमारी जो है आज तक हम ना हमारे गांव में कोई ऐसा मसला है, ना हमारा जो है ऐसा मसला है आज तक। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारा दुश्मनी से क्या लेना देना। हम गरीब लोग हैं, अपनी गरीबी करते हैं। इतने अगर लैंडलॉर्ड होते तो हमने ये मूंगफली का काम क्यों करना था, कोई और बड़ा काम करते। कितने अरसे से मूंगफली का काम कर रहे हो? ये काफ़ी अरसे से हमारे जो बच्चे हैं ये मूंगफली का मेहनत मजदूरी करते हैं। पहले लकड़ का टाल भी था, वो लकड़ों का काम था। फिर उसके बाद जो है ज़रा थोड़ा सा ये बच्चा हमारा कफालत ज़्यादातर इसके सर पर ही थी, अल्लाह के सर पर थी और इस बच्चे के सर पर थी, मोहम्मद इस्माइल खान शहीद के। और इसका जो बाप है इसकी जो है बेचारा, ये तो रीढ़ की हड्डी का इसका ऑपरेट हुआ, ये तो उधर से उधर तक भी दूसरे का सहारा लेकर उठता है। इसकी पोजीशन ये है कि ये पीछे व्हील चेयर इसकी खड़ी है और इसको तो ये हालात है कि ये मतलब इधर से उधर भी किसी बंदे के आसरे पर ही चल सकता है, क्योंकि इसकी रीढ़ हड्डी का जो पोजीशन है वो तो हम घर वालों को पता है, लेकिन इनको भी नहीं बताया। लेकिन इनका आना जाना मसला बिल्कुल डॉक्टर कितना मुश्किल हो जाता है लाला, औलाद को जवान करने में पूरी नस्ल लग जाती है, कमर टूट जाती है, कोई एक बदबख्त आता है मार के चला जाता है। बस सर, हमारी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब सीएम साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें वो इंसाफ चाहिए जो एक केलों वालों के साथ रायवंड में हुआ है, और जो जुल्म हमारे साथ हुआ है मूंगफली के दानों पर हुआ है। हमारी कोई किसी से ज़ाती या दावत या ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और हमारा किसी के साथ कोई ऐसा मसला आज तक है ही नहीं है, ना बड़ों का है और ना छोटों का है। हम मेहनती लोग हैं, हम मेहनत के साथ काम है, और ये मूंगफली के दानों पर हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। हमें सीएम पंजाब और जो अल अफसरान हैं उनसे इंसाफ। लाला एक बात बताओ, पहले वो नहीं थी, क्या नाम है, सीसीडी नहीं थी, तो जराइम की नौयत और थी, समझ और किस्म के जराइम आ रहे थे। अब कोई केले पे मार रहा है, कोई मूंगफली पे मार रहा है, हमें हो क्या गया है? बस ये है कि हम ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है ना, हमारे साथ तो ये जिस तरह हमारे ऊपर क़यामत आ गई है। हम कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और कम से कम ये जो मुल्ज़िमान हैं, कल ऐसा कोई इबरतनाक किसी और के साथ ना हो, किसी और बच्चे की माँ, किसी की बीवी का, किसी शोहर, किसी बच्चे का बाप, इस तरीके से किसी के साथ जुल्म ना हो। हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ इस तरीके से मिले कि हमें पता हो कि पाकिस्तान हुकूमत और पंजाब जो सीसीडी पाकिस्तान जो पंजाब में बनी है वो वाकई इंसाफ करती है। सीसीडी के मुतलाशी हैं जी, तलाश करें सीसीडी को कि कहाँ है सीसीडी, कब आएगी, कब इनकी मुआवनो मददगार बन के अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। बट जुल्म तो हो गया, अल्लाह पनाह था। फिर मिल रहे हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाबी की मिसाल है, इकते भुखा उतो बदतमीज। ये हैपनिंग हुई है या फैसलाबाद में, एक शख्स चलते फिरते मुंह मारने का आदी है, जैसे कोई जानवर नहीं, कभी उसकी फसल को मुंह मार, कभी उसके चारे को मुंह मार, जानवर चौपाए, बिल्कुल उस तरीके से एक मेहनतकश की रेडी पर मुंह मारता है। मेहनतकश मूंगफली बेचता है, मेहनतकश एक दफा भी रोकता है, दूसरी दफा भी रोकता है, तीसरी दफा भी रोकता है, इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ यहां तक बढ़ता है कि बकौल वालिद के वो मूंगफली उठाकर जमीन पे फेंकता है, ऊपर पांव मलना शुरू करता है, यानी हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि कोई पौड़ा पवे ही पवे, और फिर पौड़ा पड़ जाता है। हालात यहां तक आते हैं कि वो बदबख्त वापस जाता है, चंद मिनट बाद दोबारा आता है मोटरसाइकिल पे साथी के साथ, और आकर ढम ढम ढम। ओ भाई, क्या लियारी है, आज 2025 का नहीं, आज से 15 साल 10 साल पहले का लियारी है क्या? ये फैसलाबाद था, यहां पर रिट ऑफ लॉ की बात हो रही थी। यहां पर बताया गया था सीसीडीए, बताया गया था कि अब गुंडा नहीं चलेगा, बताया गया था बदमाश नहीं चलेगा, बताया गया था अब कोई किसी का हक नहीं खाएगा। लेकिन यहां पता चलता है कभी कोई केलों से मार गया, कोई बादामों से मार गया, कोई मूंगफली से मार गया।
मुझे समझ नहीं आ रही कि वेयर वी पीपल आर लीडिंग। फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनकी दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नन्ही कली है जी, मैंने उसको गोद में लिया, बेचारी रोने लग गई। वो अब अब्बा लब्दी फेर रही है। 11 माह उसकी उम्र है, पहली घर की औलाद है, 1.5 साल शादी को हुआ है, बीवी बेवा, बेटी यतीम। सारा उम्र कब्र में जाते तक वो बाप नहीं देखेगी, पूरी जिंदगी वो बाप नहीं देखेगी। हाँ, वो जरूर तस्वीर में देख लेगी, सुन लेगी, ऐसा था मेरा बाप। खत्म। क्यों? क्योंकि एक भूखे रजील इंसान को चंद दाने मूंगफली के खाने थे, वो भी गुंडागर्दी के साथ। उस गुंडे ने लुकमा अजल बना दिया। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे भाई। क्या नाम है? नदीम खान मेरा नाम है। क्या ये जो बात मैंने की है यही सच है या सच इसके अलावा है? बिल्कुल यही सच है, कोई और तनाज़ा था ही नहीं, यही मूंगफली का तनाज़ा था। ना हमें पता था कि ये जालिम ये काम करेगा। आप उसको जानते ठीक थे? है, हम जानते नहीं थे। मुलज़िम हमारे का नाम साथ क्या था? मुलज़िम का नाम, एक का नाम मुदस्सर है। हाँ जी। जिसने मूंगफली खाई थी वो कौन है? वो मुदस्सर था। फायर किसने मारा है? मुदस्सर ने कॉल करके एक लड़के को बुलाया था। हाँ। 10-15 मिनट के बाद आगे उसको आप उन्होंने नहीं ये कर जानते दिया। थे? हम नहीं जानते थे उसके बाद। अच्छा जी। हमारे इल्म में भी नहीं था ऐसा मुदस्सिर वाक़या क्या होगा। काम करता है? मुदस्सर गाड़ियों के वर्कशॉप में काम करता है। खुद भी मैकेनिक है? जी जी, खुद भी मकान। यानी वो गलत सही होगी ना, एक भूखा हो तो बदतमीज। ऐसे ही है, भूखा ना होता तो मुंह जानवर की तरह ऐसे क्यों मार रहा होता? ऐसे ही है, ऐसे ही है, जो भूखा नहीं है वो तो बेचारा पैसे दे के ऐसे ही है। आगे पीछे 2-3 दाने उठा लेता है, कोई नहीं। इस दिन में ना उसने मुट्ठी भर ली। हाँ, मुट्ठी भरने के साथ उसने थोड़ी सी उसको मना किया, उसका उसने हक है? उठा के नीचे फेंक दी। हालांकि ना कोई हाथ मारा ना कोई बात की, चला गया। कहता अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉल करके साथी को बुलाया, आगे फायर मार कोई थोड़ी तलकलामी तो हुई होगी हाँ, ना? ये तो थोड़ी ऐसे- सी हाँ, ऐसे तो तलकलामी, नहीं होता हाँ, ना, कुछ तो थोड़ी हुआ है ना, तलकलामी, लेकिन उसको उसका ये रोका नहीं था था। कि बंदा मार दो। हाँ, ऐसे ही है, रोका था, यही तलकलामी है। नहीं, कोई क्या ऐसा कोई नहीं। मकामी गुंडा है, कोई गुमाश्ता है, कोई बदमाश है, किसी का रस्सा गिर है, कोई पीछे? कौन है इसके पीछे, क्या है? पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। भाईजान, कोई यहाँ होगा से तो गली से उन्होंने इतना निकले ना, दरिंदा की। शरीफ आदमी को एक दफा कोई बंदा रोक देगा ना, मेरा थड़ा नहीं चढ़ना, कहेगा जी भाई ऐसे ही है, परेशानी में मैं ध्यान से जाऊंगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई इमा होती है, कोई गुंडा होता है, कोई मिजाज में गुंडागर्दी ऐसे होती ही है। है। क्या था? कुछ भी नहीं था। हमें पहले से उसका कोई इल्म नहीं था कि ये ऐसा वाकया करेगा या ऐसा ये काम करेगा। ठीक है, चंद दाने थे, उसको मना किया है। ठीक है, उसने क्या, मैं तानू हुनी दस देना, तानू मैं पूछ लेना तानू। उसके बाद 15 मिनट कादी के बाद पानी ते कादी मर्दानगी। आप ऐसे ही भी है। गोलो या अगले दा घर भी तबाह बिल्कुल कीता। बिल्कुल अपना पूरा खानदान उजाड़ दिया। अब वो लगाओ थाने कचहरी के चक्कर, जेलों में जाओ, ऐसे ही। मुलाकातों पे। अपनी नस्ल भी बर्बाद की। इधर भी कोई यतीमी दे गया और कहीं ऐसे पे ही। बेवगी दे गया। ऐसे ही। प्यो दा जवान पुत्र खो लिया, मां बेचारी अंदर रोंदी बैठी होनी है। मतलब जिसको हाथ लगाओ वो बेचारा तकलीफ चेक है। क्या कहना चाहते हैं? कोई बात यही आप कहना चाहिए कि हमें ना इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे और लोगों को इंसाफ मिला, हमें भी ऐसे इंसाफ चाहिए। हम सीसीडी सिर्फ- चाहिए, हाँ जी, यही सीसीडी कह रहे हैं यही ना? कह रहे हैं। हाँ जी, खुल के हमें बात इंसाफ, करें। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हुआ है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि हमारा आगे कोई तनाज़ा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ चंद मूंगफलियों के दानों पे ये हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। अब क्या इस प्रैक्टिस को देखते हुए कोई बंदा किसी की रेडी पे, किसी के रोजगार में आके हाथ मारे तो वो ऐसे ही। फौरी तौर पर पेश कर दिया करे कि जनाब ऐसे। आपका ये ले जाओ, नहीं तो गोली मार दोगे? ऐसे ही है, ऐसे ही है, या ऐसे वैसा ही। करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई आके आपके क्या घर करें? की दीवार को हाथ लगाए तो बाहर निकल आओ, उसको बहन थोड़ा ही आ जाओ, हाँ नहीं तो जी। गोली मार देगा। ऐसे ही है। क्या नाम है भाई? शेर महमूद खान। शेर महमूद खान साहब, क्या लगते हैं? ये मेरे मामू, इस्माइल के? ये मेरे मामू हैं ये हैदर साहब आपके जी, वो मामू मेरे हैं। cousin अल्लाह थे। इनको सब्र दे। इस्माइल और मेरा इस्माइल कज़न आपका cousin है। कज़न था जी। आप क्या काम करते हैं? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये मुल्जिम पार्टी से क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने आपका बंदा मार दिया, अब आप बहाना बना रहे हैं मूंगफली का? सर कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई तनाज़ा था। बस वो तैश में आ गया। तैश की वजह से ना सर उसने जो है ना वो मामला ये ख़राब हो गया कि इस्माइल ने कहा कि ऐसे हाथ ना मारा करो, बार बार मेहरबानी करो, मुझे इतनी बचत नहीं होती रेडी में जितना आप ले जाते हो मुठियाँ भर के। तो उसमें ना उसने गुस्सा किया और मूंगफली को जो नीचे फेंक के पैर से दबाया। कितने मिनट का कुल ये वाकया है, ये वहां से आने में और उसके बाद बंदा मार देने में? कितने सर घंटा लगा? 15-20 मिनट लगे हैं सर। बस 15-20 मिनट बाद आया, वो दूसरे को भी लिया। इसके
पास भी गन थी, उसके पास भी गन थी। जो मुलजिम दोनों हैं, उनके जी पास जी, है। दोनों के पास जो है ना वो पिस्टल इस्माइल और जो आपका भाई है अबू बकर जी। इब्राहिम, इस्माइल और इब्राहिम दोनों वहाँ पर मौजूद थे? नहीं सर, इब्राहिम जो है वो बाहर था, इस्माइल जो है रेडी पे था। उसने कॉल की कि यार ऐसे ऐसे ना ये मेरे साथ बदतमीजी करके चले गए और दाने भी जो है ना वो फेंक के इस्माइल ने अपने भाई को इब्राहिम को बुलाया? जी जी, कॉल की कि आप आ जाएं और ये मेरे साथ ज्यादती हो गई है। उसने कहा यार कोई बात नहीं, हमने इधर ही रहना है और चले हम बात कर लेंगे आगे। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि मैंने 20 मिनट बाद आना है और मैं आपको बताता हूँ जो आपने मेरी बेइज्जती की है ना दानों पे, तो मैं मुझे आपको आपने मुंह मारने से रोका? हाँ, मुंह मारने से रोका, मैंने छोड़ना नहीं आपको। वो जैसे ही वो दोनों आए, एक को और साथ ले आए, वो भी कोई आइस मेकर है, कोई आइस मेकर है? जी, या इसका नशा जिसको करने वाला? जिसको साथ लेके आई वो भी आइस मेकर है। गवर्नमेंट कहती है हमने आइस वालों की और नशे नुशे वालों की ऐसी तैसी नहीं सर, आप वो पिक देख ले, हम तो इस चीज पे हैरान है कि पहले बंदे को मारा जाता है, सीसीडी वाले मार देते हैं, बाद में पिक शो होती है। ये पहले से ही पिक शो हो गई है, सारी दोनों की पिक पहले से शो हो गई, सोशल मीडिया पे चल रही है। और आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए आवाज़ पहले भी उठाई, अब फिर भी उठा रहे हैं। सबका शुक्रिया, सब पंजाबी भाइयों का शुक्रिया। हम ये नहीं कहते, मुसलमान भाई हैं भाई, जी भी सबसे पहले मुसलमान है सर, अल्लाह आपको इज्जत और पाकिस्तानी है। पंजाबी ये तकसीमें मेरे लिए जी जी जी, हम तकसीम करना ही नहीं चाहते सर, और इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा जी करना जी, है। अल्लाह का शुक्र। हमें जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़े होना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि पुलिस क्या कहती है? सर पुलिस का तो हमारे साथ अभी तक तो ठीक है, लेकिन सर हमें इंसाफ सीसीडी से चाहिए। जैसे सब दोस्तों, सब पाकिस्तानियों को मिल रहा है इंसाफ, हमें भी ऐसे इंसाफ मिले। हम नहीं जा सकते सर, ये कैसे जाएंगे इनके लाला ये अदालतें बंद कर देनी पड़ेंगी फिर तो। सर क्या करें लाला, सीसीडी क्या क्या करेगी और कितनी देर करेगी? सर, जो सीसीडी कर रही है ना वो सबसे अच्छा कर रही आप है। कहते हो यही सही है? जी बिल्कुल यही सही है। वजह क्या है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि सर यही सही ये है? अब हमें पता नहीं 6 साल लगने हैं, 5 साल लगने हैं, वो बरी होने हैं, क्या करने, हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम आप अफोर्ड कर कहते हैं सके। कि चल जी बात। सर, आप ये जैसे और लोगों के साथ इंसाफ होता है ऐसे हमारे साथ इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं और सीसीडी से चाहते, हुकूमत पाकिस्तान से चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता इस बात का जवाब क्या है। कानूनी बात करूँ, शरई बात करूँ, लेकिन बात तो शर्मिंदगी की है जी सर, कि हमारा सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। वो सच्चे हैं भाई, उन्होंने बंदा मरे है, भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटियां, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसकी बला से हर चीज जाए पहाड़ में, उसको 2 रोटियां चाहिए। मजलूम को क्या चाहिए? इंसाफ। और अगर उसका इंसाफ फौरी हो रहा है तो वो उसकी ख्वाहिश करेगा, लेकिन क्या ये इंसाफ लेजिटिमेट है? वल्लाहु आलम, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। मुझे हैरत है सिर्फ, क्यों? क्योंकि हमने उनको सिस्टम ही ये दिया। असी उन्होंने राह ये विखाया, दूजा राह तो साडा जी बंद पे है। वहां पे तो हमने ना उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, ना उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की। हमारी तवज्जो इधर ही है। भाई साहब बैठे हुए साथ, दोस्त मोहम्मद भाई, आप इस फैमिली को जानते हैं? जी, कितना जानते हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं। कितने करीब रिश्तेदार हैं? बस इससे करीब हो नहीं हो सकते। इससे करीब और हो नहीं सकते। क्या गुंडे हैं ये? नहीं बदमाश हैं? नहीं क्या करते? कोई कब्जे शब्जे लेते हैं? नहीं। रेडी लगाने का काम करते हैं? जी, हाँ, इसी तरह ही। रेडी का काम जी, करते हैं। इनका बंदा, आपका अजीज इस्माइल कैसे मारा गया? भाई जो ये कहानी सुना रहे, मैं बार बार एक एक बंदे से पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बात को गवाही समझता हूँ। जी, आप जहाँ जो लोग खड़े हैं इनसे भी पूछ सकते हैं, जहाँ वाकया वहाँ से पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी, हाँ ठीक है, फैसलाबाद से पूछे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बताया इन्होंने वो ही बात है। मूंगफली से कत्ल हुआ है। मूंगफली से कत्ल हुआ। दूसरी पार्टी क्या वो कहते हैं मैकेनिक है, साथ वो कहते हैं आइस का कोई काम करते हैं, क्या है वो? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो इस तरह कह रहे हैं, जब ये वाकया हुआ ना तो हम खुद हैरान थे कि एक आदमी है, सुबह को जाता है काम पे, शाम तक 1500 रुपया कमाता है, वो आदमी कत्ल हो गया। क्यों हो गया? जब हम अस्पताल पहुंचते हैं, भैया क्या इस तरह हो सकता है? एक गरीब आदमी है। आपकी बात अगर ये गुंडे होते, कतल ग्रुप होते तो इससे कत्ल होते, ये और कत्ल करते ना, ये ना होते, ये और कत्ल करते, ये ना कत्ल होते सड़कों पे। तो फिर हम पोस्टमार्टम, ये भाई मेरे साथ सब थे वहाँ पे,
तो लड़ाई मूंगफली की है, हाँ, वहाँ इसके जाके अलावा कोई लड़ाई कोई नहीं। नहीं। जब पूछा भी क्या हुआ, वो भी कह रहे कि भाई वो मूंगफली खाने आए, उठाई उसने, इसने मना किया। क्या ये रेट पर झगड़ा तो नहीं हुआ? वो कहता है इन्हें दी देनी है, वो कहता नहीं मैं इन्हें दी देनी है। और नहीं ਉਹਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਆਈਸੂਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। मैं हाथ जोड़ के ये बात कह रहा हूं कि भाई आइस के खिलाफ कुछ कर लें। क्यों? ये बात उन्होंने बड़ी पते की है। उस बदबख्त ने जिसने नशा किया हुआ है, ये दूसरा नशा नहीं है भाई, ये जानवर बनाता है। पुत्र प्यो नू तुनी जा रहा है, प्यो पुत्र नू मारी जा रहे, की कर रहे हो? खुदा दा नाम ले लो। और आइस का बिजनेस आपके मुझे शहर बताएं यार जहां पर नहीं हो रहा। मैं यार मैनू मला दसो जिथे नहीं हो रहा यार, साबित तो करें। क्यों नहीं पूछते आप टेबल पर अपने जिम्मेदारान को बिठा के? रोजाना गिनतियां मिनतियां करके इतनी लंबी लिस्ट अवाम के मुंह पर मार देते हैं कि जी इतने मंशियात हमने कर दी, मंशियात फरोश हमने, असी लको ले गए। सारे पेडलर्स आप पकड़े हैं। कौन है इनका बड़ा रैकेट चलाने वाला? वो कब पकड़े जाएंगे? क्यों इन रैकेट्स को बस्ट नहीं कर पा रहे? और अगर नहीं कर पा रहे तो बहैसियत रियासत हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। क्यों? क्योंकि ये अब गली मोहल्ले का मसला बन गया है। या वो पब्स और क्लब्स वाली कहानी नहीं रही है, ये गली मोहल्ले का अजाब है। अफोर्ड नहीं कर पाता, वो भी कर रहा है। खुदा का खौफ करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मूंगफली की रेडी है और ये मूंगफली कातिल साबित हुई है। ये मूंगफली जान लेकर गई है एक मूंगफली भूनने वाले की। क्यों? उसका कसूर ये है कि वो चाहता है कि कोई भी शख्स उसकी रेडी से उसकी मर्जी, उसकी मंशा के बगैर उसका रिज़्क ना उठाए। हमारे यहाँ एक अमूमी आदत है कि आप, मैं, जैद, बकर चलता जा रहे हैं तो गरीब आदमी की रेडी पर इस तरह हाथ मारेगा और आगे चल पड़ेगा। खाते 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 आगे बढ़ जाएगा। यही हुआ है। ये फैसलाबाद का इलाका है। ये पीछे आप लकड़ी का टॉल देख रहे हैं, ये इसी रेडीबान शख्स की। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर सीएम साहबा की तस्वीर भी लगी हुई है। इसी रेडीबान के वालिद का कारोबार है जनाब। अब होता क्या है, ये कौन शख्स है? ये शख्स कोई हिटलर कुरैशी नहीं है। ये शख्स बजाते खुद एक मेहनत करने वाला शख्स है जो कातिल बन गया। ये सामने आपको दिखाते हैं जी, आप मुझे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये सामने, यानी ये टॉल लकड़ी का, ये रेडी और ये दुकान। इस दुकान पर जो कातिल मुल्जिम बताया जा रहा है, मुल्जिम इस दुकान पर गाड़ियां मुरम्मत करने का काम करता है। इस दुकान पर अब जाहिर है एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, आना है जाना है, लेकिन ताल्लुक नहीं है। हाँ, आ रहे जा रहे, देखा हुआ है। जवान यहां से निकलता है, वहां रेडी से मूंगफली उठाते हैं, एक दफा उठाते हैं, दूसरी दफा उठाते हैं, तीसरी दफा उठाता है तो रेडी का मालिक एतराज करता है। रेडी के मालिक का नाम इस्माइल खान और उसका भाई इब्राहिम खान है। यहां पर गुस्सा करता है और मूंगफली को नीचे फेंककर मसलना शुरू करता है। वो एतराज करता है, यहां से झगड़ा बढ़ता है। वो कहता है इत्थे रुक तेनू मैं दसना। वापस जाता है, थोड़ी देर बाद टेलीफोन पर अपने साथी को बुलाता है, यहीं पर आकर कत्ल कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। आप इस्माइल और इब्राहिम के अजीज हैं? हाँ जी, कजन है उनके। ये उन्हीं का रेडी है, जी, स्टॉल है? उनके स्टॉल है। ये टाल भी पीछे उनका है? उनका ये टाल। उस दुकान का मुल्जिम है? हाँ जी, हाँ जी, वो दुकान क्या का हुआ है मुल्जिम। यहाँ पे? ये मूंगफली का तनाजा बना हुआ था, उन्होंने किसके मोटे साथ बड़े तनाजा हुआ? इब्राहिम के साथ तनाजा इब्राहिम हुआ कहाँ पे था? इब्राहिम यहाँ लेके चले जहाँ जहाँ जो कुछ था बताएं। इब्राहिम यहाँ पे था और इस्माइल खान उधर था। जब इब्राहिम यहाँ पे था? हाँ, इब्राहिम यहाँ पे था। हाँ, इब्राहिम यहाँ पे था, इस्माइल खान इधर था। अच्छा। जब इनका तनाजा बना, वो आए, वो आते ही उसके बाइक से झगड़ पड़े। हाँ। आते ही उसके भाई को पकड़ के फायर मार दिया। एक भाई हाँ, स्टॉल पे है? स्टॉल पे था, एक भाई स्टॉल पे था और दूसरा भाई इस रेडी पे था। दुकान से वो आया? उस अच्छा दुकान से वो आया था। पहले भी आता जाता था, पर उसने ऐसे मुट्ठी भरी वगैरह काम नहीं किया, 2-4 दाने लिए चला गया। इस दिन इसने ये मुट्ठी भर कर ली। उन्हें कहा यार ये आप ज्यादती कर रहे हो, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। उसने हाथ पकड़ा, इसमें उसने फेंक के पाँव लगाए,
उसने घुसा मूंगफली को करके मसला है नीचे हाँ रख जी नीचे मसला है। इतना तनाजा था और कोई मेजर मसला कोई और बात नहीं थी, इतनी सिर्फ बात थी। अब कातिल किस साइड से आए, क्या हुआ यहाँ पे? कातिल इधर यहाँ से इसने कॉल की, वो यहाँ से आया, ये इस्माइल खान इधर था, इस्माइल खान इधर का, उसका कजन हमें बता, इस्माइल खान इधर है, उसने आते ही ना पहले इस्माइल खान के फायर मारे, उसको पता लगा ना इब्राहिम को, इब्राहिम भाग के आ रहा था, उन्होंने 3 फायर मारे, 1 फायर इब्राहिम को लगा, 2 बच के थे, पाँव पे 1 फायर लगा उसके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अभी जो जख्मी है भाई उसका क्या वो हाल है? हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हो गया? अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। वो जो मुझे बताया जा रहा है इस्माइल और इब्राहिम खान की बहन की शादी भी है। हाँ जी, दूसरे दिन उसकी बहन की शादी थी। अभी वो कैंसिल हो हाँ गई जी, है? वो कैंसिल हो गई है। कितने महीने के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उसके इसके? इस्माइल का एक बेटी है, 11 मंथ की एक बच्ची है। 1.5 साल बस। पहले शादी हाँ हुई। जी, 1.5 साल पहले शादी हुई। इस्माइल खान एक रेडीबान है जिसकी आज से 1.5 साल पहले शादी होती है। एक बेटी अल्लाह ताला देता है, 11 महीने की बेटी है। उसने अपने बाप को आंख भर के भी देखा नहीं है, लेकिन उसका बाप मूंगफली मुफ्त में ना खिलाने की पादाश में इस जहान फानी से कूच कर चुका है और मुंतजिर है कि उसको इंसाफ कब मिलेगा।